I was discussing the chemical property of carboxylic acid and their important conversion. In previous classes, I have already discussed the term esterification. Today, I am going to discuss the reaction of carboxylic acid with phosphorus pentachloride, phosphorus trichloride, and thionyl chloride, that is SOCl2. Reaction of carboxylic acid with PCl5, PCl3, and SOCl2, like that. Carboxylic acid reacts with phosphorus pentachloride, PCl5, to form RCOCl, इथेनॉल. अगर यहां ले लेंगे CH3 कॉल इथेनॉल, CH5 ले लेंगे प्रोपेनॉल, OYL सब्जेक्ट लगेगा whenever you write the iopocene of this compound. अगर इसका आप लिखेंगे iopocene तो OYL एज सफिक्स हम लोग यूज करते हैं इसमें. सो प्रोडक्ट विल बी RCOCl, POCl3, NaCl, phosphorus oxytrichloride. POCl3 is called phosphorus oxytrichloride, then hydrochloric acid. With PCl3, phosphorus trichloride, RCOCl, and phosphorus acid is released as a byproduct, S3PO3. Next one, with thionyl chloride, SOCl2 is called thionyl chloride. ये भी देगा RCOCl plus SO2 plus HCl. These are the important reaction of carboxylic acid with pentachloride, trichloride, and thionyl chloride. Main product remains same in all the cases. ध्यान रखना है, तीनों केस में ये मेन प्रोडक्ट सेम है, चेंजेस आया है केवल बाय प्रोडक्ट में. नेक्स्ट वन, आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन विथ अमोनिया. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म एमाइड हैविंग फंक्शनल ग्रुप CONH2, that is called amide. उसका रिएक्शन देखिए आप लोग. Next, reaction with ammonia. Carboxylic acid reacts with ammonia to form corresponding amide. Corresponding amide. Acetic acid, that is ethanoic acid, plus NH3, that gives ammonium acetate, CH3COO, NH4 plus CO minus.
and name of this compound will be ammonium एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम होगा अमोनियम एसीटेट। Which undergoes a strongly heating, it loses one water molecule H2O and it forms CH3CO NH2, that is called एसीटामाइड और इथेनामाइड, जो कह लो आप एमाइड। सो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइड। कन्वर्जन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू एमाइड कन्वर्जन का अच्छा मेथड है ये। इसे अमोनिया एसीटेट में करा के आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर एरोमेटिक एसिड ले लेंगे लाइक बेंजोइक एसिड, देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजामाइड। वो भी देख सकते हैं आप। बेंजोइक एसिड ये बना लेगा आपको COONH4+। इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट इस कंपाउंड का नाम होगा। और इसको स्ट्रांगली हीट कीजिए, वाटर मोलेक्युल निकल जाएगा यहां से। फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजामाइड। फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजामाइड। सो बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड एक कन्वर्जन में काम आएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक और बताते हैं इसमें, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ थैलिक एसिड बनाएगा थैलामाइड एंड फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा थैलीमाइड। उस सेक्शन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शंस ऑफ अमोनिया विथ थैलिक एसिड। अमोनिया विथ थैलिक एसिड। Reactions of ammonia with thylic acid. Thylic acid COOH that is the structure of thylic acid. Combines with ammonia to form ammonium thylate. Ammonium thylate. Name of this compound will be अमोनियम थैलेट। थैलिक एसिड से बदल गया आपको अमोनियम थैलेट में। इसमें आप स्ट्रांगली हीट कर देंगे
it loses two water molecules, H2O, H2O, ये बनाएगा आपको एमाइड, करस्पॉन्डिंग एमाइड बना लेगा ये। CO, NH2, CONH2, that is called थैलामाइड, फथैलामाइड कहते हैं इसको हम लोग। Thalamide. This thalamide undergoes a strong heating and removal of ammonia molecule to give thalamide. A strong heating करेंगे, माइनस NH3, NH2 और इसका H निकल जाएगा एक साथ। इस कंपाउंड का नाम होगा थैलीमाइड। सो थैलिक एसिड से थैलामाइड, फाइनल प्रोडक्ट विल बी थैलीमाइड। ये भी कन्वर्जन में काम आएगा। यह है बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, आपको ध्यान रखना है इसको। ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस of carboxylic acid with ammonia. Now I am going to discuss next reaction, that is reduction. Dear students, in previous classes we have already studied that primary alcohol undergoes oxidation in presence of a strong oxidizing agent, then the final product will be carboxylic acid. And carboxylic acid undergo reduction in presence of powerful reducing agent like lithium aluminum hydride, followed by hydrolysis, then it gets reduced to primary alcohol. Primary alcohol to carboxylic acid by oxidation and carboxylic acid to primary alcohol by reduction. Vice versa, ये दोनों रिएक्शन को याद रखना है आपको। Next, reduction, that is carboxylic acid to corresponding alcohol. To corresponding alcohol, हालांकि बदलता है प्राइमरी अल्कोहल में, ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, RCOH undergoes reduction in presence of a strong reducing agent LiAlH4, इसका नाम है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, याद रखना है। The name of this compound will be lithium aluminum hydride, followed by हाइड्रोलिसिस, ये बदल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, ध्यान रखना है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्राइमरी अल्कोहल, कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड टू
प्राइमरी अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ध्यान रखिएगा, काम में आएगा ये। नेक्स्ट प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड decarboxylation, because in this process you can say that this involves the removal of CO2 gas. That's why it is called decarboxylation reaction. इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड से। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड टू हाइड्रोकार्बन कह सकते हो आप। कन्वर्जन एसिड टू corresponding hydrocarbon, corresponding hydrocarbon. In this case, जनरल रिएक्शन पहले लिख लो, बता रहे हैं सो ये नहीं, यही होना चाहिए। RCOOH, when this carboxylic acid heated with soda lime, do you know soda lime? Heated with soda lime, soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Soda lime. Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. When this carboxylic acid gets heated with this soda lime, it forms corresponding hydrocarbon, that is RH, and next product will be Na2CO3. इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहां लेंगे CH3 तो यहां मिलेगा आपको मीथेन CH4। अगर लेते हैं C2H5 इथाइल ग्रुप, मिलेगा C2H6। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट करता है। अगर लेते हैं हम CH3COH, दैट इज इथेनोइक एसिड, NaOH and CaO, that is called soda lime. A strongly hitting CH4 plus sodium carbonate. सॉरी, इसमें सोडियम एसिटेट लेना है, नॉट इथेनोइक एसिड। RCOONA, और यहां भी कहते हैं हम RCOONA, तब 2 मोल को लिख लेगा इसका ना। अब ये बनाएगा ये प्रोडक्ट फाइनल Na2COO3 प्लस AH कंबाइन होकर बदला गया CH4 में। इसका नाम होगा आपको सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट कंबाइंस विद सोडा लाइम, ये बनाता है मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। अगर हम यहां लेते हैं C2H5 COONA with NaOH, soda lime,
ये बनाएगा C2H6 प्लस Na2CO3। कहने का मतलब है कि सोडियम एसीटेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बदल जाएगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड decarboxylation reaction. Now, dear students, I am going to discuss the last reaction, but very very important, known as HVZ reaction. नाम सुनो इसका, HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। वो देखिए बता दो रिएक्शन इसका। In short, you can say that HVZ reaction, that is called हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। HVZ called हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड कंडीशन समझिए इस पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड विच मस्ट हैव अल्फा एच। कंडीशन है इसका कि वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा एच होता है, हमारा कंडीशन होता है। सो हैविंग अल्फा एच are halogenated at, you can say that, alpha position when treated with either chlorine or bromine in presence of red phosphorus, it gives alpha halocarboxylic acid, and this one is called HVZ reaction. कंडीशन है बालक, carboxylic acids having alpha H atom, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा H एटम होना जरूरी है। आर हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजिशन। That carboxylic acid having alpha H are halogenated at alpha position on treatment with Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus, and the product will be, it gives alpha halo carboxylic acid, and this section is called हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। रिएक्शन देखो बालक, आर, इसको CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो स्ट्रक्चर बना करके, यही आपका अल्फा एच। कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड हैविंग अल्फा एच अंडरगोज हाइड्रेशन विथ आइदर Cl2 और Br2, कुछ भी ले सकते हो। हम लेते हैं Cl2 विथ red phosphorus and followed by hydrolysis, it gives RCH। यहां लेते हैं Cl को, COOH, अल्फा क्लोरो या अल्फा जिसका था मैंने हेलो, यहां होगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड।
अल्फा क्लोरो carboxylic acid, and this reaction is called HVZ reaction. इसी का नाम है HVZ reaction. Students, this is the last topic of this chapter, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. But I want to discuss some important questions given in exercise. हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाह रहे हैं जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखना बहुत जरूरी है. स्पेशली ध्यान देके देखिए, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Important exercise question given in NCERT books. Question number 12.10, 12.11, 12.13, 12.15, 12.19, इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा. 12.10, 11, 13, 15, 19 अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सॉल्व कर रहा हूं इसके बारे में. 12.10 पर है, देखिए आप. Dear students, listen here you all. Question 12.10, that is an organic compound with molecular formula C9H10O. Organic compound, molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP डेरिवेटिव. ये बनाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव. 2,4-DNP डेरिवेटिव reduces tolerance reagent. Reduces tolerance reagent and undergoes Cannizzaro reaction. And undergoes Cannizzaro reaction.
on vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. One two benzene dicarboxylic acid. Identify the compound. यही क्वेश्चन है आपका. Friends, listen it carefully. क्वेश्चन है, an organic compound given है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C9H10O, नो डाउट, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव. ध्यान रखना है 2,4-DNP टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है? एनी आइडिया किसी को है? 2,4-DNP का टेस्ट कौन सा कंपाउंड, कौन सा फंक्शन ग्रुप देता है? याद रखना बालक, कार्बोनिल ग्रुप. ये देता है 2,4-DNP टेस्ट. कार्बोनिल ग्रुप में दोनों हो सकता है, मे बी एल्डिहाइड और कीटोन. आगे देखो, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट. हम प्रीवियस क्लास से पढ़ा चुके हैं कि टॉलरेंस टेस्ट के लिए ये टेस्ट कौन सा फंक्शन देता है? मेरे पास दो ऑप्शन है, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड भी हो सकता है. हाँ, कौन सा देगा? वेरी गुड, बताओ. नहीं आइडिया है? देखो बालक, एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट. क्लियर हो गया? 2,4-DNP दिया, मेरे पास कंपाउंड है कार्बोनिल ग्रुप, मे बी एल्डिहाइड मे बी कीटोन, राइट. अब उसमें से आगे देखते हैं, ये देता है टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस देता है एल्डिहाइड. अब उसमें से मेरे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है उसके पास एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन. ध्यान रखना है, हम लोग पीछे पढ़े हैं कैनिजारो रिएक्शन. क्या स्टेटमेंट है कैनिजारो रिएक्शन का? एनीबॉडी एल्स? व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन? Sir, which don't have an alpha hydrogen atom and undergo self-oxidation and reduction. वेरी गुड, थैंक यू. कैनिजारो रिएक्शन है तो वैसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा और ये सेल्फ होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका, राइट. हमको काम है यहां से अल्फा एच नहीं होगा, तो अल्फा एच नहीं होगा तो आइदर इट में भी ये हो सकता है मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड और CHO बेंजल्डिहाइड. कंपाउंड का फॉर्मूला है C9H10O. ये सेट करेगा नहीं. निश्चित है कि मेरा कंपाउंड ये है, बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव होगा निश्चित रूप से. अब हम इस पर फोकस करें कि गिवन कंपाउंड होगा वो बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव होगा. नेक्स्ट क्लू, ऑन विगोरस ऑक्सीडेशन. अगर ऐसा करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन तो ये देता है बेंजीन 1,2-कार्बोक्सिलिक एसिड. ये तो ऑक्सीडाइज करेगा ही. इसमें एक और आया है ग्रुप, एक ग्रुप यहां होना चाहिए क्या? C2H5. हम पीछे पढ़ चुके हैं, आइदर मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ये बदलेगा COH ग्रुप में. अब इसका देखो तो फॉर्मूला, कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 4 9 H10 और एक O. क्लियर है बालक?
the given compound will be 2-ethyl बेंजल्डिहाइड। कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, समझिए। द गिवन कंपाउंड क्या दिया हुआ है, उसका नाम होगा 2-ethyl बेंजल्डिहाइड। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए एक डिफरेंट क्लू के थ्रू कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका नाम है 2-ethyl बेंजल क्लोराइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन लिख रहे हैं, वो देखिए क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, so the given compound will be टू इथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे, यही कंपाउंड क्लियर हो गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है वो है हमारा 2-ethyl बेंजल्डिहाइड। अब जैसे कह रहा है रिएक्शन शो कर देंगे हम इसका। CHO CH5। अगर यहां देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, ए देगा सिल्वर मिरर और ए बदल जाएंगे COO माइनस कार्बोक्सिलेट एनायन में। ए दिया आपको सिल्वर मिरर टेस्ट और इसका देना है 2,4-DNP डेरिवेटिव बताना है। इंपॉर्टेंट चीज वो है, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 2,4-DNP। 2,4-DNP स्टैंड्स फॉर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, याद रखिएगा। 2,4-DNP NH2। This is the structure formula for 2,4-DNP, that is 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसका ये डबल बॉन्ड से ये जो ग्रुप है ये पानी बन के निकल जाएगा आपको यहां H, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव आउट हो जाए यहां से। जो बचेगा उसका नाम होगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। ए बना लिया आपको